Good morning, students. Now, in this video, we are going to resume the chapter number 1, which we left last time. We had done it till here. Now, we will start from here. This I had given you in homework that you have to do it by yourself, but I will do one thing for you. This question, about 1/4 of the boards, this you have to solve it in your copy. I had written it before only, but now let me show you how you have to write it in your copy page. There you go. Pause the video and check how it is written. Now let me explain you something. When we go with ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crores, so these are the values over which we use. When you will write it on the place value. This 10th place value we don't write. Okay, 10 lakhs we will not write. We will write the number 2 together. This place and this place together we will join the number and then we will write it. Okay, like this one and this one. These three together we will read it, but we will not say that if on 10th place, okay, 10,000th place, what is it? 2. So we will not say 2 10,000, 1,400. We will not count it like that. Okay. So what you will do? You will join these two numbers, which is 21. So you will read 21,000 because this 10th, this we didn't count it. Okay, हम इसको नहीं बोलते हैं. We don't use it when we are writing a number or saying a number. Okay, now we are going to start it. Okay, the fish market. Have you been to a fish market? If you have been, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. वो जगह जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आती है उस जगह को कभी कभी हम फिश मार्केट भी बोलते हैं. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस वेयर द मार्केट इज़ वेरी बिजी. मार्केट हमेशा फुल रहता है, ज़्यादातर वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं. तो वहाँ पे क्या है ना, जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत ज़ोर के, या जो भी सेल्समैन या सेल्स वूमेन होते हैं, जो भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने आते हैं, उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दे यूज़ टू से इट लाउड. जैसे कि आपके घर के आगे या कभी आप सब्ज़ी मंडी जाते होगे तो वहाँ पे आप देखते होगे वो लोग क्या करते हैं, जो आपके घर पे सेल करने आते हैं, वो लोग घर के बाहर से जब निकलते हैं तो वो बोलते हुए निकलते हैं. दे यूज़ टू से इट लाउड दैट इतने रुपए किलो ये सब्जी, इतने रुपए किलो ले लो, लाइक दैट. सो दे इन फिश मार्केट दे ऑल शाउट लाइक दैट टू टेल द प्राइजेज ओवर देयर. सो वन शुड बाय fishes from their shop only. So that is why it is very noisy. This is why fish market, whenever there is too much of noise, everybody says that it is like a fish market. Now this fish market is very busy today. Here the fish market is very busy. Many boats have brought a good catch. बहुत सारी boats हैं जिन्होंने अच्छे ज़्यादा मात्रा में fishes को catch किया है. The fisherwomen are shouting out their prices to buyers. बायर्स के लिए जो वुमेंस हैं, फिशर वुमेंस, और लाउड वॉइस में चिल्ला रही हैं द रेट्स एंड प्राइजेस दैट दे हैव. ओके, दैट फॉर द टाइप ऑफ फिश. सो वन फिशर वुमेन इज मिनी शाउट्स, कम हियर टेक sardines at ₹40 a kg. तो मीना चिल्लाती है, यहाँ आओ, सरडाइंस जो मछली होती हैं, टाइप ऑफ अ फिश, वो 40 रुपीज़ पर kg आप ले लो. देन ग्रेसी ऑल्सो शाउट, शी ऑल्सो स्टार्ट शाउटिंग, नेवर सो चीप, कभी इतना सस्ता नहीं था. गेट स्वार्ड फिश फॉर ₹60 a kg. स्वार्ड फिश यहाँ पे आपको 60 रुपीज़ kg मिल जाएगी. देन फ्लोरम्मा सेल्स प्रॉन्स. वो फ्लोरम्मा जो है उसके पास क्या है, प्रॉन्स हैं, फिश नहीं है. सो she says that prawns for ₹150 a kg. वो उसकी जो रेट है वो है 150 a
kg. So Karuthamma sells squids for ₹50 a kg. She also shouts, "Look, Fazila can hardly carry this big kingfish." She says, "This fish weighs 8 kg. I will sell the whole for ₹1200." तो यहाँ पे ये जो है इसका नाम है फैज़ला. इसके पास देखो ये कितनी बड़ी फ़िश है, किंग फिश बोलते हैं इसको. सो शी इज़ सेइंग दैट आई विल सेल दिस फिश एट ₹1200 फॉर ऑल. मैं पूरी फ़िश बेचूँगी, काट के नहीं बेचूँगी. एंड आई विल सेल इट फॉर ₹1200 एंड इट इज़ 8 kg. ये 8 किलो की है और मैं इतने में सेल करूँगी. नाउ there is a homework for you. You have to solve all these questions properly. Some of the hints I had done, but you have to write it with all the details. Okay, I had directly solved it here for your help, but you have to write fully. Okay, at what price per kg did Fazila sell the kingfish? Fazila ने kingfish per kg कितने में बेच ली? Floramma has sold 10 kg prawns today. फ्लोरामा ने 10 kg प्रॉन्स बेचे हैं. हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट? तो उसे कितने पैसे मिले उस चीज़ के लिए? नाउ ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश. ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश बेची है. मिनी हैज़ अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी. मिनी और ग्रेसी ने बराबर पैसे कमाए हैं. हाउ मैनी kgs ऑफ सर्डाइंस डिड मिनी सेल? ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा अलग है. इसमें क्या है, उन्होंने आपको ग्रेसी का कुछ भी नहीं बताया है कि नंबर वाइज कुछ भी नहीं दिया है कि उसने कितना बेचा, कितना कमाया, कुछ नहीं. बस उन्होंने एक आपको हिंट दिया है कि उसने पैसे, बिल्कुल मिनी ने पैसे ग्रेसी के बराबर कमाए हैं. और हमें तो ग्रेसी के भी पैसे नहीं पता, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्रेसी ने कितने पैसे अर्न किए हैं. वी हैव टू फाइंड दैट, देन वी विल go on to Mini. That Mini has bought the same, earned the same money. Okay, same amount of money. So we will check the money and we will divide it with the 1 kg of the fish that she sold, and we will get the answer. So I had done it for you here. So you can copy it from here, but still write it properly with all the details like we are doing in our previous question answers. Okay, all the things should be right. Now on next, Bashir has ₹100. Bashir के पास ₹100 थे. He spends 1/4 of the money on squids and another 3/4 on prawns. क्या किया बशीर ने? 1/4 तो उसने पैसे 100 में से, ₹100 में से 1/4 तो उसने खर्च कर दिए किस चीज़ पे? स्क्विड्स पे. और बाकी जो बचे हुए 3/4 थे वो पूरे, अब 1/4 इधर चलेगा तो बच्चे कितने? 3/4 ही बचेंगे. तो उसने वो पूरे प्रॉन्स के लिए खर्च कर दिए. सो हाउ मैनी किलोज ऑफ स्क्विड डिड ही बाय? अब पता करना पड़ेगा कि उसने कितना स्क्विड खरीदा. इसमें ये तो नहीं बताया उसने कितना स्क्विड खरीदा, बस पैसे दिए हैं. सो how will you solve this question? In second one also, how many kilograms of prawn did he buy? इसमें तो पैसे भी नहीं दिए हैं, ना कुछ बताया है. प्रॉन्स का तो उसमें कुछ भी नहीं बताया है, ना स्क्विड्स का बताया है. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट मी शो यू. Bashir, okay, this is the same question I had written. These are the hints for you. Now total money he has. How much money he has total? 100. Okay. 1/4 of squid. स्क्विड का 1/4 कितना होगा बताइए? तो हम पहले तो चेक करेंगे कि उसने स्क्विड के लिए कितना खर्चा किया है. सो ₹100 टोटल थे. मैंने आपको पहले भी लास्ट ईयर जब पढ़ाया था 4th में, देन आई टोल्ड यू दैट वेन एवर देयर इज़ अ पोर्शन गिवन like 1/4, 2/3, 3/4 like that, then you always have to multiply part by whole. Whole means total money he got and part मतलब 1/4, 3/4 like that. So part multiply by whole जब हमने किया part multiply by whole तो 100 1 जा 100. मैंने आपको समझाया था कि 100/4 कैसे आता है. So I had done it. 100/4 कैंसिल किया, 25 आ गया. That means squid was for ₹25. Squid was for ₹25. Now
सो 1 kg स्क्विड इज़ फॉर ₹50. 1 kg कितना है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 50 रुपीज़ है. देन व्हाट वी विल डू, सो 25 इज़ हाफ ऑफ 50. 25 50 का क्या है, हाफ. अब हम इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हैं, 5th इज दिस मच क्लास दैट यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट. ओके, इसको हमें अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें हम जो खुद एक बार में देख के समझ गए हैं वो चीज़ हमें इसमें लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है. सो डायरेक्टली वी कैन थिंक, अपना माइंड यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि 25 50 का हाफ होता है. एवरीबडी नोज दैट. सो व्हेन वी नो इट इज़ द हाफ ऑफ 50, दैट मीन्स उसने 1 kg का भी हमें हाफ ही करना पड़ेगा. तो 1 kg का हाफ कितना होता है, हाफ kg. सो वी नो दैट थस ही बॉट, थस हमें पता चल, इसलिए हमें पता चल गया दैट ही बॉट हाफ kg ऑफ स्क्विड्स. तो उसने कितने kg स्क्विड्स खरीदे, हाफ kg स्क्विड्स. नाउ हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय. अब उसने कितने प्रॉन्स खरीदे, सेकेंड वाला क्वेश्चन था. सेम यही करना है हमें, बस इसमें एक चीज़ का अंतर है. यहाँ पे हमने इसको कैंसिल करके पार्ट इनटू होल करके हमने निकाला है, लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे कि हमें एक सेक्शन तो पता चल गया, अब बाकी जो भी बचा हुआ है वो उसने प्रॉन्स के लिए ही खर्चा किया है. तो हम इसको पार्ट 3/4 से 100 को मल्टीप्लाई करके फिर पार्ट निकालने की जगह हम डायरेक्ट कर देंगे 100 - 25. सो वी गेट 3/4 इज फॉर ₹75. 3/4 पार्ट 100 का जो उसने प्रॉन्स पे खर्च किया था, व्हाट इज़ दैट, इट इज़ 75 रुपीज़. सो एज 75 इज़ हाफ ऑफ 150. अब यहाँ पे प्रॉन्स कितने kg हैं, 150 रुपीज़ पर kg हैं. सो जब हमें ये बात पता है तो 75 150 का क्या होता है, हाफ होता है. 75 150 का क्या होता है, हाफ. थस ही बॉट हाफ kg ऑफ प्रॉन्स. तो उसने प्रॉन्स भी कितने kg के खरीदे, हाफ kg. नाउ देयर इज़ अ टंग ट्विस्टर दैट इज़ little bit difficult, so you could try it. The tongue twister starts here. She sells seashells on the seashore. She is sure that the shells that she sells will be there no more. Okay, it is difficult for me too, but you can try it. Try speaking it faster. Okay, she sells like that. So we'll move on to the next one. This is a swordfish. Next, Women's Meenkar Bank. Here, this Meenkar Bank belongs to women's. Okay, this is opened by women's only. The meeting of Meenkar Bank has just begun. There is a meeting in Meenkar Bank. So what is the thing going on here? Fazila is the president. Now the Fazila, you remember this woman, this lady, she is Fazila. So she is the president of this bank. So 20 fisher women have made their own bank. There are total 20 fisher women who have opened this bank together. So they had made their own bank. Each saves 25 rupees every month and puts it in the bank. अब ये क्या करती हैं कि ये क्या 25 रुपीज़ हर मंथ बचा के और बैंक में डाल देती हैं. सो ना द क्वेश्चन इज़ हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ. हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ. एंड देन देयर इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 years. ओके, कि अभी उन्होंने कितने हर महीने कितना बचाती है और 10 years में वो कितना क्या जो भी उनकी सेविंग रही है वो कितना कलेक्ट कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे. सो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, वी विल सॉल्व इट इन अवर फेयर कॉपी. चेक हियर, दिस आई हैड रिटन इट एंड डन इट फॉर यू. सो नाउ यू शुड सी इट. नाउ द क्वेश्चन आई हैड रिटन इट फुली हियर. सो लुक इट हियर. How much money does the group collect every month? So for one, number of women are 20. Per month money saved, क्योंकि उनने टोटल पूछा है और एक वुमेन कितना सेव करती है 25. तो 20 वुमेन्स कितना करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 20 × 25, 20 × 25 is equals to 500 rupees.
So 500 rupees per month they save. The second is how much money will be collected in 10 years. Now 10 years का पूछ रहे हैं, हम डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास 1 ईयर का नहीं है. मैंने आपको पहले भी समझाया है, whenever you solve a question both the units should be same. अब यहाँ पे उन्होंने ईयर का पूछा है तो आपको पहले ईयर का पता होना चाहिए, मंथ से काम नहीं होगा. मंथ के अगर नंबर आप यूज़ करके चलेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा. इफ़ देयर इज़ ईयर देन हेयर ऑल्सो शुड बी ईयर, बट हेयर इज़ मंथ. सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स. पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में. ओके, सो 1 मंथ इज़ इक्वल टू 500. 1 मंथ में कितना होता है? 500 होता है. तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12. सो हम 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मंथ का पता चल जाएगा कि टोटल वो कितने रुपए अर्न करते हैं, ये सेव करते हैं. सो 12 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 60. 100. व्हाट वी डू, हम इसको 60 100 नहीं बोलते हैं, वी से इट 6000. सो इन 1 ईयर इट इज़ 6000. सो इन 10 years money saved is 6000 into 10, that is 60,000. Right, now in practice time there are some questions given. This we are going to solve it in our copy directly. So here is the question. Gracie needs money to buy a net. Jhansi and her sister wanted to buy a long boat, so they take a loan from their bank. They will return it with interest. तो यहाँ पे क्या पता चला है कि ग्रेसी, लुक एट इन द बुक, ग्रेसी को पैसे चाहिए नेट खरीदने के लिए और झांसी और उसकी सिस्टर को चाहिए फॉर लॉन्ग बोट. वो लॉन्ग बोट खरीदना चाहती है, लॉन्ग बोट. सो दे टुक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक. तो उन्होंने बैंक से लोन ले लिया. दे विल रिटर्न विथ इंटरेस्ट. अब वो उन्हें ब्याज कैसे वापस करेंगे? इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेसी टुक अ लोन फॉर ₹4000 टू बाय अ नेट. उसने 4000 रुपीज़ का लोन लिया. शी पेड बैक 345 एवरी मंथ फॉर अ ईयर. उसने 1 साल तक, फॉर 1 ईयर उसने ₹345 एवरी मंथ दिए. उसने हर मंथ में 345 रुपीज़ दिए. हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक. तो उसने टोटल मनी कितने बैंक को वापस किए. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व इट. सो हेयर व्हेन यू विल सी इट, लोन कितना लिया उसने? 4000. शी पेज बैक 345 पर मंथ. यहाँ पे पर मंथ की बात चल रही है. उन्होंने क्वेश्चन में भी इसको क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने क्लियरली दिया है कि मंथ है. सो फॉर 1 ईयर, तो वो 1 ईयर में कितना लौट आएगी? व्हेन यू विल, सो व्हाट वी हैव टू डू. अब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया मंथ और ईयर है, दोनों सेम होने चाहिए. तो ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे हम इस मंथ को. तो 1 मंथ में 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12. सो वी विल मल्टीप्लाई द नंबर बाय 12 एंड वी विल गेट द आंसर. So when we had multiplied it, what do we get? 4140, that is 4140 rupees. So she paid 4140 rupees in a year. Understand? Now next is for Jhansi. Jhansi and her sister, I will read it from the book so you will be very much clarified. Jhansi and her sister took a loan of rupees 21,000 to buy a log boat. लॉग बोट खरीदने के लिए उन्होंने कितने का लोन लिया? 21,000. दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर. हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ. तो उन्होंने हर मंथ में कितना, इतने का लोन लिया उन्होंने, इतना उन्होंने टोटल वापस किया है 1 ईयर में. तो यहाँ पे ये पूछा है कि उन्होंने हर महीने कितने रुपए जमा किए. सो ये क्वेश्चन अभी जो हमने सॉल्व किया था, ये वाला क्वेश्चन, इससे बिल्कुल अपोजिट है. इसमें मंथ का दिया था और ईयर का पूछा था. इसमें ईयर का दिया है और मंथ का पूछा है. तो हम इसको उल्टा कर देंगे. मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड. रिमेंबर दिस. क्या होता है कि मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड और प्लस का अपोजिट होता है माइनस. ये इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर. ठीक है, कुछ भी होगा, ये दोनों साथ में चलते हैं और ये दोनों साथ में चलते हैं. ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं. सो वी विल सी इट. नाउ लोन टेकन, कितना लोन लिया? 21,000. हाउ मच? 21,000. शी पेड बैक हाउ मच इन अ ईयर. उसने 1 साल में इतना पे बैक कर दिया.
Now in 1 year there are how many months? 12 months. So we had written it. She pay back every month. तो किसने every month कितना दिया? मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि उन्होंने ईयर का दिया था और मंथ का पूछा था. यहाँ पे सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. यहाँ पे उन्होंने क्या करा था, दे आस्क्ड अबाउट 1 year and they had given information about 1 month. So but here it is opposite. So when it multiplies opposite is divide. जब क्वेश्चन ही अपोजिट है तो हम उसका जो नीचे सॉल्यूशन में जो किया है हम उसका भी अपोजिट करेंगे. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड. सो द नंबर which they had given us that this much rupees she paid in 1 year, so we will divide it by 12. तो हमें 1 month का पता चल जाएगा. तो जब हम इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, यू डिवाइड इट प्रॉपरली इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड. जिन बच्चों को इस तरीके से कैंसिल करना नहीं आता, मैंने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से सिखाया था, बट स्टिल बिकॉज इट हैज़ बीन सो मच टाइम एंड यू हैड नॉट प्रैक्टिस इट, सो यू मस्ट हैव फॉरगॉट. मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस, बिकॉज अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे और फिर दोबारा शुरू से शुरू करना इज़ वेरी टफ फॉर एनीवन. मैं भी अगर चाहूँ कि कोई नई चीज़ मैथ्स में सीखूँ तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है और तो मैं भी नहीं सीख पाऊँगी. इट इज़ नॉट अबाउट यू ओनली. ये बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर प्रॉब्लम है. कोई भी हो, अगर मैथ्स आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आप जब उसको दोबारा सीखोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है. सो यू डिवाइड इट लाइक दिस. अगर आपको इस तरीके से कैंसिल करने में दिक्कत हो रही है सो आप इस तरीके से करिए. ये वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैंसिल कैसे करते हैं. She paid 1,960 rupees every month. Okay. Now here next वीडियो से अच्छा है मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देती हूँ. इसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर है उसको देखते हैं कि वो ऊपर वाले से हम डिवाइड कैंसिल करते हैं. अगर डायरेक्ट कैंसिल करना नहीं आ रहा है सो वी फाइंड अ कॉमन नंबर. ठीक है, हम इन दोनों में कॉमन नंबर देखेंगे विच इज़ द कॉमन नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ द numbers. For now we will check the last numbers, like this is 2 and this is 0. That means these both are even numbers, so it can be easily divided by 2. तो हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे. तो 2 6 12 and when we will divide it, so it will come 2 1 2. Wait. Now how we will cancel? अब हमें 2 से डिवाइड करना है तो मैंने आपको इतना तो बताई दिया. 2 1 2, ये 1 से गया. नाउ इट इज़ 3. सो 2 1 2 बचा क्या है, 3 का क्या बचा, 1. जब हम इसमें से 2 कैंसिल माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 1. सो 1 और 5 कितने हो गए, 15. तो 2 की टेबल में 15 तो आता नहीं है, सो वी विल डू 2 7 14. बचा इसमें से भी 1 तो यहाँ पे कर देंगे 12. तो 6 12 और 0 का 0 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. सो इट इज़ 1 1 7 2 6 0. It is 6 0. So again we will cancel it by 2. Then again like this. आपको कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है और हम लास्ट तक करते रहते हैं जब तक अब वो पॉसिबल ही ना हो और फिर एक टाइम पे हमें एक आंसर मिल जाता है. ट्राई सॉल्विंग इट. ओके. नाउ हियर, why don't we start a new fish drying factory? Now यहाँ पे है कि हम कोई नई फिश ड्राइंग फैक्ट्री शुरू क्यों नहीं करते जिसमें हम फिश इकट्ठा करके लाएंगे एंड देन वी विल ड्राई इट इन दैट फैक्ट्री. सो द वुमेन्स ऑफ मीनकर बैंक दे wants to start a factory to dry fish. So they went to the पंचायत. वो पंचायत गए and then they talk about that. उन्होंने बात करी उस बारे में. Then what happened कि पंचायत ने उन्हें क्या किया कि एक ज़मीन दे दी that you can open your factory here on this land. पंचायत ने उन्हें लैंड दे दिया और उनसे कहा कि आप यहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोल लो. So and over the years they have saved rupees 74,000. यहाँ पे क्या हुआ that they had a bank, they were saving the money, so it had been few years that in these years they had saved 74,000 rupees.
So now what did they do? They find out how much they will need for the factory. अब उन्होंने ये पता किया, देखो अब उनके पास पैसे हैं, उनके पास ज़मीन है, वो फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि फैक्ट्री लगाने के लिए टू स्टार्ट अ फैक्ट्री वी नीड फ्यू थिंग्स। अब फैक्ट्री ओपन करना है, देन वी विल नीड फ्यू थिंग्स, मटेरियल, देन व्हाट दे डू दे नीड, सो दे आर गोइंग टू बाय दैट। बट फर्स्ट Fazila write all the things they need to buy. So she had made a list of the things. Now we will turn the page and we will find what she had made the list and how she had made. Here is the list, you check. Here first in the list what she had done, bore well for fresh water. क्योंकि अगर ड्राई करना है तो पहले मछलियों को धोना भी पड़ेगा. So they write that. Then second, bamboo racks for fish drying, cement tank, tray and knife, bucket. So these are the things she needed. Price of each piece means एक चीज़ कितने में आएगी. बोरवेल अगर खुदवाना है तो 3000 में आएगा. अगर बैम्बू रैक्स चाहिए फिश ड्राइंग के लिए तो कितने के आएंगे, 2000 का एक आएगा, है ना. सीमेंट टैंक चाहिए तो सीमेंट टैंक कितने का आएगा, 1000 रुपीज़ का आएगा. ट्रे एंड नाइफ चाहिए तो एक ट्रे और एक नाइफ का सेट कितने का आएगा, 300 का आएगा. बकेट चाहिए तो एक बकेट 75 रुपीज़ की आएगी. उन्होंने लिस्ट बना लिया. देन नंबर ऑफ़ आइटम्स, अब उन्हें कितना चाहिए, उन्हें 20 रैक चाहिए, 1 बोरवेल तो 1 में काम हो जाएगा, सीमेंट टैंक 4 चाहिए उन्हें, ट्रे एंड नाइफ 20 चाहिए और 20 बकेट चाहिए, क्योंकि सब लोग एक में काम करेंगे. देन दे नीड ऑल दिस. सो नाउ टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री. अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर 3000 का एक बोरवेल 3000 रुपीज़ में ही होगा, लेकिन अगर बैम्बू रैक चाहिए 2000 में आ रहा है, सो व्हाट will be the value for, what will be the amount for 20. So we have to multiply. So what you have to do, you have to multiply all these to each other for per thing, okay, and then you will get the answers and then add it all to write the to find the total cost set up for the factory. Okay, so this is your homework. You have to do it by yourself. These are also the questions related to this only. You have to do it by yourself. Now here is, let us first calculate for 6 kg of fresh fish. So this is also very easy. In this what you have to do, now factories set it up. So how they will make it, fresh fishes they have to buy and then they are going to sell it, fish for 1 kg what is the rate, for fresh fishes what is the rate, then you have to ask. So this is all done going to be done by yourself only. This is not a big thing, you have to solve it by yourself. And this is also the homework. What I had explained you over here in these questions, that is the same thing over here going to be. You do it by yourself and do it in your copy, then I will check it when you will come here, okay. And you can bring your notes to the school so we can check it. If you want, if your fair copy is completed, then you can come to school within morning time, so I can check your fair copy at that time only. Thank you.